Good morning, student. Today in this class I will solve one conceptual question with a numerical behind it, student, and that is Young's double slit experiment with white light. Okay. Now these questions are asked in the examination. What happens when white light is used in Young's double slit experiment? The answer of this question is very simple, student. That at the center the fringe is white, and near it the colored fringes are optic. Today I will try to explain you the detailed reason behind it. मीन्स सेंटर में व्हाइट फ्रिंज आता है, उसके पास में कलर्ड फ्रिंजेस आती हैं. ये एक बेसिक आंसर है उसका. एट द सेंटर देयर इज ए व्हाइट फ्रिंज and beyond center there are colored fringes. Beyond center there is a colored fringes. I will try to explain you in detail why it happens, student. Okay. Now, student, you know the visible region of the spectrum. This is the visual part, and as you go this side, wavelength increases. The violet wavelength is near about 400 nanometer, and the red it is 700 nanometer. This is the portion which our eye can, student, detect. Okay. Now in the Young's double slit experiment, student, as we have seen the arrangement, these are the two slits. This is the screen. This is slit S1, this is S2, and here, student, white light is incident. Now, student, at the center what happens is, center there is a bright fringe, student. Bright fringe. It is white, student. Okay. Central fringe is white. Why it happens in the center? Because all the colors, all the rays which are reaching at the center, they have zero part difference. So what is happening, student? At the center of the screen, the part difference of all the wavelengths reaching at the point is zero. Hence, constructive interference takes place. Constructive means that color will appear. So here all the colors are part with zero. Their mixed effect is white in color. So when white light is used in Young's double slit experiment, the central fringe is white in color. This you have to remember, student. Okay. Now, student, beyond this center here, some reddish appearance is seen. Reddish appearance here also. I am writing it here, reddish. Here also reddish. And beyond this it becomes bluish. Beyond this it becomes bluish. And then again white colors start, student. This is the observation, okay? Beyond the center reddish color starts, it ends with bluish, and then again white color. So I will try to explain this part of it, student. Now, student, what is happening at any point here? See, this is point P. This is the ray, and this is the ray. The part difference, student, S2P minus S1. As we are going above, student, away from the center, this part difference is increasing, student. Part difference is increasing. Now, if you remember, after the central bright, there is a dark band. Near the center, usually there is a dark
डार्क फ्रिंजेस इन सीन इन यंग्स एक्सपेरिमेंट विथ मोनोक्रोमेटिक लाइट। पहले सेंटर होता है ब्राइट में, व्हाइट होता है, ब्राइट लाइट होती है सेंटर में, उसके बाद एक डार्क फ्रिंज आती है जो अपने यंग्स में पढ़ा है स्टूडेंट, जहां मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज हुआ था। यहाँ मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं, व्हाइट लाइट यूज हुआ है। तो यहाँ सेंटर के ऊपर हल्का सा रेडिश दिखाई देता है, जैसे मैंने कहा, ऊपर या नीचे। अब मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये जो पार्ट डिफरेंस है स्टूडेंट, पहला डार्क बनता है सेंटर के ऊपर जनरली। तो पहले डार्क का जो कंडीशन है वो ये है स्टूडेंट, λ/2 फर्स्ट ऑर्डर डार्क, फर्स्ट ऑर्डर डार्क फ्रिंज। ठीक है स्टूडेंट, डार्क से स्टार्ट होता है। अब अगर अपन ये वाला वेवलेंथ लें, जैसे 400 नैनोमीटर, तो पार्ट डिफरेंस लैम्डा 400 के लिए कितना हो गया, 200। ये वायलेट के लिए हो गया। रेड के लिए पार्ट डिफरेंस कितना हो गया स्टूडेंट, 700/2। तो ये आ गया स्टूडेंट 350 नैनोमीटर। ठीक है स्टूडेंट, जैसे मैंने कहा था, जैसे हम सेंटर से ऊपर जाएंगे पार्ट डिफरेंस बढ़ता जाएगा, पार्ट डिफरेंस बढ़ता जाएगा। इसका मतलब पहली जो कंडीशन वायलेट वाली सेटिस्फाई हो रही है, ये कम है पार्ट डिफरेंस, देखो 200 आ रहा है वायलेट के लिए। मतलब जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाएंगे पार्ट डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है। तो पहला कंडीशन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का किसका सेटिस्फाई हो रहा है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस is satisfied by violet color। ये डिस्ट्रक्ट का मतलब ये वाला कलर वहां एब्सेंट हो जाएगा स्टूडेंट। तो पहला जो डार्क कंडीशन सेटिस्फाई कौन कर रहा है, वायलेट वाला कर रहा है स्टूडेंट, ये लोअर वाले कर रहे हैं पहले। जब ये कलर वहां एब्सेंट है तो ये बचा वाला कलर वहां पे दिख रहा है स्टूडेंट। और ये कारण है कि व्हाइट कलर के बाद व्हाइट फ्रिंज, सेंट्रल फ्रिंज के ऊपर तुरंत रेडिश दिखने लगता है स्टूडेंट। और जैसे जैसे स्टूडेंट हम ऊपर जाते हैं सेंटर से, एज यू गो अप अबव द सेंटर्स स्टूडेंट, तो क्या होता है स्टूडेंट, पार्ट डिफरेंस बढ़ती जाती है और फिर ऊपर आके रेड वाले के लिए सेटिस्फाई हो जाता है ये कंडीशन, डिस्ट्रक्टिव कंडीशन है स्टूडेंट, डार्क। तो जहां रेड कलर, ये वाले कलर गायब हो जाते हैं तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर प्रेजेंट होते हैं ब्लूइश, इसलिए ऊपर वाला ब्लूइश होता है स्टूडेंट। सो दिस इज द स्टूडेंट एक्सप्लेनेशन कि व्हाइट लाइट जब हम यूज करेंगे सेंट्रल के पास कलर्ड फ्रिंजेस क्यों आएंगे। आपको समझ में आया? तो जनरल रूल आपको क्या समझाना है, सेंट्रल वाला तो व्हाइट बनेगा बिकॉज द पार्ट डिफरेंस इज 0। सारे कलर्स के पार्ट डिफरेंस 0 रहेंगे, वहां सारे कलर्स एक साथ कंस्ट्रक्टिवली मिलेंगे सेंटर में, तो वहां क्या कलर दिखाई देगा, व्हाइट। जैसे आप व्हाइट के ऊपर जाएंगे तो वहां पहला डार्क कंडीशन स्टार्ट होता है। तो और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं पार्ट डिफरेंस बढ़ता जाता है। तो ये इतने सारे वेवलेंथ वहां पे आ रहे हैं, ये इनफाइनाइट आ रहे हैं। ऐसे तो ये विजिबल वाला बता रहा हूं मैं, ऐसे तो इनफाइनाइट वेवलेंथ है व्हाइट कलर के पास, तो मैं विजिबल रीजन की बात कर रहा हूं। तो जैसे जैसे हम सेंटर से ऊपर जाएंगे ये वाला डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस बढ़ता जाएगा। तो वायलेट के लिए जो पार्ट डिफरेंस कंडीशन आ रहा है डार्क का, वो 200 आ रहा है। मतलब पहले सेटिस्फाई कौन कर रहा है, वायलेट वाला की सेटिस्फाई होगी, मतलब वायलेट कलर गायब हो जाएगा, इट विल बी एब्सेंस, एंड दैट इज व्हाई हियर द रेडिश अपीयरेंस इज सी। वही बात आगे जैसे मैंने समझाया, और आप थोड़ा ऊपर जाओगे पार्ट डिफरेंस बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे पार्ट में बढ़ रहा है वहां रेड के लिए सेटिस्फाई हो जाएगा, रेड कलर के लिए ये पार्ट डिफरेंस सेटिस्फाई होगा, तो रेड कलर एब्सेंट हो जाएगी। एंड वेयर द रेड कलर इज एब्सेंट स्टूडेंट, देयर व्हाट विल हैपन, द कॉम्प्लीमेंट्री कलर विल कम। तो इसलिए इसका जो इफेक्ट है वो ब्लूइश दिखेगा। आगे स्टूडेंट फिर व्हाइट कलर दिखता है। तो आगे व्हाइट क्यों दिखता है स्टूडेंट, उसका भी मैं एक्सप्लेनेशन आपको समझा रहा हूं। सपोज स्टूडेंट, और जब यहां ऊपर जा रहे हैं पार्ट डिफरेंस हो गया, सपोज पार्ट डिफरेंस हो गया से 4000 नैनोमीटर, इन दोनों के बीच में इतना पार्ट डिफरेंस आ गया। अब ब्राइट की कंडीशन जो है स्टूडेंट वो क्या है, देखिए यह कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है। ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन है n लैम्डा इज इक्वल टू 4000। n लैम्डा से अपन इक्वेट करेंगे, इससे मुझे वो सारे लैम्डा मिलेंगे जिनके कारण ब्राइट मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, देखो लैम्डा इज इक्वल टू 4000 अपॉन n। अब स्टूडेंट आप क्या करो, n की वैल्यू रखते जाओ। तो देखो मैं यहाँ वैल्यू यहाँ पे रख के देख रहा हूं,
जब स्टूडेंट n की वैल्यू 1 है तो लैम्डा आ रहा है 4000 नैनोमीटर। जब n की वैल्यू 2 है लैम्डा आ जाएगा 2000। जब n की वैल्यू 3 है तो लैम्डा आ जाएगा स्टूडेंट 3 1 जा 3 1 10 3 3 जा 9 3 जा अराउंड दिस आता जाएगा। ऐसे आप n बढ़ाते जाओ स्टूडेंट 1000 नैनोमीटर। अब स्टूडेंट देखिए इतने सारे वेवलेंथ कंस्ट्रक्टिव प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इन और इसमें स्टूडेंट विजिबल वाले भी कुछ आ जाएंगे और आप कम करते जाओ n को बढ़ाते जाओ। तो अब स्टूडेंट इतने सारे वेवलेंथ का जो कंबाइंड इफेक्ट है हमारी नेकेड आई को वो क्या दिखेगा, व्हाइट कलर दिखेगा। एंड दैट इज व्हाई व्हाट हैपेंस इज स्टूडेंट कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं पहले तो हमें रेडिश दिखता है, फिर ब्लूज और फिर व्हाइट कलर्ड फ्रिंजेस यहाँ पे दिखाई देने लगते हैं स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट यंग्स एक्सपेरिमेंट विद व्हाइट लाइट। इसका बुक में स्टूडेंट बहुत शॉर्ट एक्सप्लेनेशन लिखा रहता है कि कलर्ड फ्रिंजेस, वो कलर्ड फ्रिंजेस क्यों आते हैं स्टूडेंट मैंने आपको अभी समझाया वीडियो में। स्टूडेंट आप इस वीडियो को आप दोबारा फिर से देखिएगा यदि आपको पहले बार में समझ में ना आया हो। अब मैं स्टूडेंट इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कर रहा हूं। सपोज स्टूडेंट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द स्क्रीन ये दिया हुआ है 1 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेस वो दिया है 1 mm, या सॉरी 1 ना लेके 0.9 mm ले लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट 1 mm। तो ये जो एक्सपेरिमेंट का सेटअप है स्टूडेंट मैं आपको फिर से बना के दिखा रहा हूं। दिस आर द टू सोर्सेस, ये है स्क्रीन, दिस इज द स्क्रीन, ये वाला डिस्टेंस है d स्टूडेंट 1 मीटर, ये S1 है ये S2 है, ये वाला डिस्टेंस है 0.9 mm। अब हमें स्टूडेंट एक पॉइंट सेंटर से यहां पे दिया गया है, ये डिस्टेंस है y और ये है 1 mm स्टूडेंट। यहां पे जो रेस पहुंच रही हैं तो द लाइट विच इज रीचिंग हियर स्टूडेंट न्यूमेरिकल सुनना ध्यान से, द लाइट विच इज रीचिंग एट दिस पॉइंट P डिस्टेंस y फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर है। उस लाइट के आगे हम क्या कर रहे हैं, एक प्रिज्म को रख रहे हैं स्टूडेंट। वी आर प्लेसिंग a prism has been kept or the light reaching at a distance y is passed through the prism, is passed through prism. Question है find the missing wavelength, find the missing wavelength। कौन सी कलर्स वहां पे मिस होंगी या कौन सी वेवलेंथ मिस होंगी, तो वही वाली वेवलेंथ मिस होंगी स्टूडेंट जिन लोग यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हो। ठीक है स्टूडेंट, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन क्या है ये आपको याद रहना चाहिए स्टूडेंट। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसकी कंडीशन है स्टूडेंट पाथ डिफरेंस should be equal to odd multiple of lambda upon 2। और स्टूडेंट ये y डिस्टेंस पे है सेंटर में, तो y डिस्टेंस में जो पाथ डिफरेंस होता है स्टूडेंट उसका फॉर्मूला अपन ने अप्रोक्सीमेशन में डिराइव किया है। दैट फॉर्मूला कम्स आउट टू बी yd अपॉन कैपिटल D। ये स्टूडेंट इज इक्वल टू होना चाहिए 2n-1 लैम्डा अपॉन 2। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट देखो मुझे लैम्डा का वैल्यू चाहिए, मिसिंग वेवलेंथ, ये डिस्ट्रक्टिव कंडीशन है। सो तो लैम्डा विल बी इक्वल टू 2yd अपॉन d इंटू 2n-1। यहाँ पे स्टूडेंट वैल्यू रखते हैं 2 इंटू y, y है स्टूडेंट y है 1 mm, तो 1 इंटू 10⁻³
स्मॉल डी है 0.9 mm, 0.9 इंटू 10⁻³ ये d1 मीटर है स्टूडेंट इंटू 2n-1। इसको यदि सॉल्व करेंगे स्टूडेंट देखो कितना आ रहा है 1.8 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 2n-1। ये मीटर में है स्टूडेंट। इसको यदि मैं नैनोमीटर में कन्वर्ट करूं तो इंटू 10⁹ आ जाएगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट लैम्डा की वैल्यू देखिए कितनी आ रही है, ये 10⁻³ यहाँ 3 आ जाएगा तो 1800 अपॉन 2n-1। तो ये कौन सी लैम्डास हैं स्टूडेंट व्हिच विल बी मिसिंग इन द स्पेक्ट्रम। अब आप n को 1 2 3 रखते जाओ स्टूडेंट। लैम्डा n को 1 रखो तो 1800, n को 2 रखो तो 1800, 2 2 जो 4 -1 3 600। ये अब नैनोमीटर में आ रहा है स्टूडेंट। फिर n को 3 रखो तो 6 -1 5, 1800 अपॉन 5, 5 3 या 15, 360। ये देखो स्टूडेंट ये विजिबल में आ रहे हैं, कुछ विजिबल वाले भी एब्सेंट रहेंगे। सो दिस आर द मिसिंग वेवलेंथ स्टूडेंट व्हिच आर फाउंड हियर एंड आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म दे विल नॉट बी सीन। डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है वो वहां पे मिसिंग रहेंगे, कंस्ट्रक्टिव का मीनिंग होता है स्टूडेंट वहां पे वो प्रेजेंट रहेंगे स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट एक क्वेश्चन है, एक अलग से क्वेश्चन है स्टूडेंट, मैं जिसका आपको पूरा सेपरेटली आपको समझाया है कि व्हाट हैपेंस व्हेन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द व्हाइट लाइट इज पास्ड। ओके, तो आपको याद रखना है स्टूडेंट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। द सेंट्रल फ्रिंज विल बी व्हाइट इन कलर and near the center colored fringes will be obtained and it will start with reddish and end with bluish। सेंटर के ठीक ऊपर रेडिश से शुरू होगा और ब्लूइश से ये खत्म होगा, उसके बाद फिर से व्हाइट कलर के फ्रिंजेस वहां पे दिखेंगी स्टूडेंट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब स्टूडेंट मैं आपको एक और बेसिक यहाँ पे बता दूं कि जब मैं कह रहा हूं when I am saying fringes स्टूडेंट, ऐसे आपने बुक में भी देखा होगा फ्रिंजेस को अलग अलग तरीके से, जैसे किसी में ऐसा दिखाया है, ये फ्रिंजेस हैं स्टूडेंट। ये ब्राइट, फिर इसके बाजू में डार्क, फिर ब्राइट, ये डार्क फिर ब्राइट, ये फ्रिंजेस हैं स्टूडेंट, इसको कहते हैं फ्रिंजेस। तो स्टूडेंट हैव यू एवर थॉट ये फ्रिंजेस एक्चुअली क्या है? आर दे इमेजेस? क्या ये इमेज है? नो स्टूडेंट, ये इमेज नहीं है। तो ये एक्चुअली है क्या स्टूडेंट? मैं उसका आपको एक बेसिक थ्योरी बताता हूँ। ये फ्रिंज मैं कह तो रहा हूँ यहाँ कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है स्टूडेंट, अब आप उसको समझो स्टूडेंट। देखो क्या हो रहा है स्टूडेंट, अगर ये फ्रिंजेस मान लो मैं एक पर्टिकुलर फ्रिंज ले रहा हूं, आई एम टेकिंग ए पर्टिकुलर फ्रिंज, एक पर्टिकुलर मैं फ्रिंज ले रहा हूं ये, और ये ब्राइट है। ठीक है स्टूडेंट, ये ब्राइट है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, इसमें जितने पॉइंट्स आ रहे हैं, इस पॉइंट्स का जो पार्ट डिफरेंस है, अभी अपन ने दिखाया था फिगर में, S2P माइनस S1P, P वो पॉइंट है जहां फ्रिंज तैयार हो रहा है। ये जो डिफरेंस है स्टूडेंट, ये कांस्टेंट आ रहा है स्टूडेंट। मतलब आप कोई भी पॉइंट ले लो, इस में सारे का ये डिफरेंस सेम आएगा स्टूडेंट, और ये ब्राइट के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। मान लो ये 2 लैम्डा को हो सकता है सेटिस्फाई कर रही हो, 2 लैम्डा के बराबर आ रहा हो, तो ये स्टूडेंट वो वाला लोकस है स्टूडेंट। फ्रिंज इज द लोकस ऑफ it is the locus of the particle having the constant phase। यह पार्टिकल जगह यहाँ पे लाइट होगा स्टूडेंट, तो वहां पे जो लाइट आ रही है स्टूडेंट, जो पार्ट डिफरेंस है इस फ्रिंज के ऊपर थ्रू आउट एक पर्टिकुलर फ्रिंज में सेम वैल्यू आएगी पार्ट डिफरेंस की। और इसीलिए स्टूडेंट इस टाइप का जो इक्वेशन होता है आपने देखा होगा स्टूडेंट, मैथमेटिक्स में ये पैराबोला कहलाता है।
जो इस कंडीशन में सेटिस्फाई करी, मतलब एक पॉइंट ऐसे घूम रहा है, इसकी उसका एक पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट से डिफरेंस कांस्टेंट है स्टूडेंट, दैट इज अ पैराबोला। इसलिए स्टूडेंट जो शेप ऑफ द फ्रिंजेस है वो पैराबोलिक भी होती हैं। जनरली अपन ऐसा दिखाते हैं, अलग अलग कंडीशन है उसकी, पैराबोलिक स्ट्रेट, तो पैराबोलिक शेप की होती हैं स्टूडेंट फ्रिंजेस, और कुछ फ्रिंजेस होती हैं स्ट्रेट। वो डिपेंड करता है कंडीशन में स्लिट कहाँ रखें, वो एक हायर मैथमेटिक्स है, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो आपको फ्रिंजेस का मीनिंग समझ में आया स्टूडेंट। सपोज वैसे ही अगर यहाँ पे डार्क है किसी पर्टिकुलर फ्रिंज में, ये पूरा एक डार्क फ्रिंज तैयार हुआ है स्टूडेंट, ये एक डार्क फ्रिंज है, तो आपको समझ में आ रहा है ये क्या शो कर रहा है। हर एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट आप ले लो इस फ्रिंज में, इसका जो डिफरेंस है S1P S2P माइनस S1P, ये आपको समझ में आ रहा है। यंग्स का जो एक्सपेरिमेंट था स्टूडेंट, ये मैं फिर से यहां बना दे रहा हूं, ये एक स्लिट है S1, ये S2 स्टूडेंट, और ये स्क्रीन है, ये एक पॉइंट है स्टूडेंट, ये देखो ये P है। तो ये जो डिफरेंस है उस पर्टिकुलर फ्रिंज में, आप किसी भी पॉइंट का ये डिफरेंस ले लो, वो सेम आएगा स्टूडेंट, सेम वैल्यू आएगी, वो एक फ्रिंज को तैयार कर रहा है। और अगर मैं डार्क कह रहा हूं तो वहां डार्क की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है स्टूडेंट, इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो पूरा फ्रिंज वहां पे जो जगह है वो डार्कनेस बन रही है। मतलब उसका हर एक पॉइंट का जो पार्ट डिफरेंस है, एवरी पॉइंट का पार्ट, मतलब ये जो डिफरेंस है उस पॉइंट से, देखो फिर से S2P S1P, दिस इज कांस्टेंट स्टूडेंट, ये कांस्टेंट है। तो वो जो कांस्टेंट वाला जो जगह है उसी को अपन फ्रिंज कह रहे हैं स्टूडेंट, वी आर सेइंग इट एज फ्रिंजेस। तो अपन ने पढ़ा है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्टूडेंट क्या होता है, फ्रिंजेस तैयार होती हैं, ब्राइट एंड डार्क, कहीं बहुत ज्यादा लाइट होता है, कहीं डार्कनेस होती है। तो आपको फ्रिंजेस का मीनिंग समझ में आया स्टूडेंट क्या है, उस एक पर्टिकुलर फ्रिंज के सारे पॉइंट्स का पार्ट डिफरेंस सेम है, पार्ट डिफरेंस इज सेम, दिस इज द मीनिंग ऑफ द फ्रिंजेस स्टूडेंट। तो ये एक स्टूडेंट एक क्लास था जिसको मैंने सेपरेटली इस टॉपिक पे बनाया था। जनरली इसमें बहुत कंफ्यूजन होते हैं बच्चों को जो बुक में जब वो पढ़ते हैं, क्योंकि बुक में सिर्फ आंसर लिखा होता है, पूरा जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है इट इज नॉट देयर। तो मैंने आपको स्टूडेंट मैथमेटिकली आई हैव एक्सप्लेन। अब स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन के आंसर को पर्टिकुलर आज एक ओन वर्ड्स में आप तैयार करोगे कि यंग्स एक्सपेरिमेंट व्हाइट लाइट पास किया जा रहा है, सेंट्रल वाला व्हाइट और सेंट्रल के ऊपर रेडिश से शुरू हो रहा है। क्यों शुरू हो रहा है स्टूडेंट, वो कंडीशन से, जैसे मैंने मैथमेटिक्स समझा आपको नोटबुक में, इसको ओन वर्ड्स में लिखना है स्टूडेंट। ओके, so this much only today student, thank you।